Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be explaining Unit 15 Pronouns. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be continuing with Unit 15 Pronouns. Students, in my last video, I had explained the subject pronoun and the object pronoun. And I had also explained the personal pronoun. That is the subject pronoun, object pronoun and the possessive pronoun. Students, a pronoun, when it is used in the place of the subject before the verb, it is known as the subject pronoun. And a pronoun, when it comes after the verb in the sentence and it receives the action, that is called the object pronoun. है ना? Subject pronoun, the doer of the action, and object pronoun, the receiver of the action. And the possessive pronoun tells us about the possession, that a thing belongs to whom. Now students, before I start with the exercise, I would like to explain the subject pronoun and the object pronoun with some examples. आपको बेटा ये तो थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सेंटेंस में वर्ब के पहले आता है एंड इट इज द डूअर. जो भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन करता है और जो रिसीव करता है वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. फाइन. और मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था, है ना, एंड दैट वाज द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही बिकम्स हिम. ही इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ही बिकम्स हिम इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है? हिम हो जाता है. देन शी सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स बिफोर द वर्ब एंड आफ्टर द वर्ब शी बिकम्स हर. देन द सब्जेक्ट प्रोनाउन इट रिमेन्स इट in the object pronoun also. Then the subject pronoun I, it comes before the verb and after the verb it becomes me, the object pronoun. Then we, the subject pronoun, comes before the verb in the sentence and after the verb it becomes the object pronoun me. है ना? I becomes me. The subject pronoun we comes before the verb and it becomes the object pronoun us after the verb. So we becomes us. Then the subject pronoun you remains you only in the object pronoun. You remains you. Then the subject pronoun they, it comes before the verb and after the verb they becomes them. Fine. So ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा subject और object pronoun समझना. Now students, I'm going to explain with some examples. Now look at this first sentence. You talk to the teacher. Fine. And the teacher talks to you. Now, in the first sentence, you talk to the teacher, which is the pronoun you. ये you pronoun है, ठीक है. You talk to the teacher. You क्या action कर रहा है? Talk कर रहा है. तो आपका talk क्या है बेटा? Verb है ना. You क्या कर रहा है? Talk कर रहा है. Action कौन कर रहा है? You कर रहा है. तो you क्या है बेटा? Subject है. You क्या है? Subject है. You is the subject. And you talk to the teacher. Teacher क्या है? Object है, because वो action receive कर रहा है. Now you क्या है? You pronoun है. तो ये कौन सा pronoun हुआ? Subject pronoun. Why? Because it comes before the verb. ये वर्ब के पहले आया, इसने एक्शन किया, एक्शन परफॉर्म किया, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन.
वेयर इज द टीचर? द टीचर तो नाउन है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है. फाइन. वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट. नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर टॉक्स टू यू. इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? द टीचर. अब इसमें टीचर टॉक्स टू यू. वर्ब तो आपका टॉक्स है, तो टॉक के पहले क्या आया? द टीचर. तो ये सब्जेक्ट हो गया, बट ये द टीचर नाउन है. अब वर्ब के बाद क्या प्रोनाउन आया? यू. तो यू क्या हो गया? वर्ब के बाद आया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यू क्योंकि प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और ये ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब के बाद में आया, इसने एक्शन रिसीव किया. जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद सेंटेंस में आता है जो एक्शन रिसीव करता है बेटा वो ऑब्जेक्ट. अब आपने देखा यू ऑब्जेक्ट, सॉरी यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होता है और यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होता है. इट सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट होता है. ये आपको समझना है ना. यू remains you only whether in subject pronoun or in object pronoun. Same way it remains it only whether in object pronoun or in subject pronoun. Now the next example. He plays with the cricketers. Then the cricketers play with him. Fine. As explained earlier, he is the subject pronoun and he becomes him in the object pronoun. अब यहाँ पे देखो, he plays with the cricketer. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है बेटा? plays. play आपका क्या है? वर्ब है. plays आपका वर्ब है और ये एक्शन कौन कर रहा है? he, है ना. तो he क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना. कोई नेम होता तो वो नाउन होता, सब्जेक्ट नाउन होता, बट ये ही क्या है बेटा? वी हैव यूज्ड ही इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो ये ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिकॉज वर्ब के पहले आया है. अब यहाँ पे विद द क्रिकेटर्स, यहाँ पे द क्रिकेटर्स क्या है? ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हुए, बट ये नाउन है. सो रिमेंबर, है ना. अब बेटा अगर हम ही की जगह ही को, इसी को हम अगर ऑब्जेक्ट में लाएंगे, सो द क्रिकेटर्स ये सब्जेक्ट हो गए क्योंकि प्ले वर्ब है. विथ ही के ही क्या हो गया? ये आपका जो प्ले है वर्ब है. इसके बाद क्रिकेटर्स आपके सब्जेक्ट है. आप जब प्रोनाउन ही वर्ब के बाद आएगा तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. ही becomes him in the object pronoun, है ना. ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है. वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ही वर्ब के बाद आएगा तो वो क्या हो जाएगा? him. उसी तरह से she सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वर्ब के अगर बाद she आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन her. सो इसीलिए मैंने आपको इन yesterday's video I had made you write one table so that you learn कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन वो वर्ब के पहले जब होता है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाता है. फाइन. सो यू कैन सी वर्ब के पहले जब प्रोनाउन आएगा जो एक्शन कर रहा है दैट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वर्ब के बाद जब वो आएगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विच रिसीव्स द एक्शन. फाइन. नाउ अनदर एग्जांपल. She gives some cake
Rita and Rita thanks her. Now, she gives some cake to Rita. First of all, verb क्या है? Gives. Gives हमारा verb है. Verb के पहले who gives the cakes to Rita? She. तो she क्या हो गया? Verb के पहले आया. She is the subject pronoun. She verb के पहले आया तो subject pronoun. Some cake to Rita. यहाँ पे Rita क्या है बेटा? Object, because Rita is receiving the action. और ये noun है. Don't get confused. Fine. Whereas in the second sentence you'll see Rita thanks her. Thanks क्या है आपका? Verb है. और her क्या है? Thanks her. Rita subject है. Thanks verb है. तो her क्या हुआ? Object pronoun. So she verb के पहले subject pronoun and after the verb she क्या हो जाता है? Her हो जाता है. Fine. So this you should understand. Fine. She becomes her. She is before the verb and her is after the verb. Now, she आपका subject pronoun था और her आपका object pronoun. Now, the next one. We want to go to the theater. Fine. Father takes us to the theater. Now, अब यहाँ पे we want to go to the theater. इसमें pronoun क्या है? We. Verb क्या है? Want to go. Verb के पहले आया तो we. We is the subject pronoun. Fine. And in the next sentence, father takes us to the theater. Takes आपका verb है और यहाँ पे we. After the verb क्या हो गया? Us. Us क्या हो गया आपका? Object pronoun. Whereas we क्या है? Subject pronoun. Fine. So we comes before the verb और ये subject pronoun and after the verb we क्या बन जाता है बेटा? Us. Object pronoun us. Fine. Now, one more example. And then we start with the exercise. They played the game very well. And the principal gave them a reward. Now look at this sentence. They played the game very well. Verb क्या है? Played है. Verb के पहले more than one के लिए हमने क्या यूज किया? They यूज किया. They verb के पहले आया तो क्या हो गया? Subject pronoun, है ना? Who played? They played. Action कर रहे तो subject pronoun. Whereas in the second sentence, the principal gave them a reward. अब इसमें verb क्या है? Gave. और they verb के बाद आएगा तो them बन जाएगा, which is object pronoun. Fine. So they becomes them. They comes before the verb, subject pronoun, and they becomes them as the object pronoun. Object pronoun verb के बाद आता है, subject pronoun verb के पहले आता है.
Subject pronoun is the doer of the action and object pronoun is the receiver of the action. Now, she irritates me. Now, these are two pronouns in the sentence. Irritates क्या है? Verb है. Verb के पहले she आया तो ये क्या हो गया? Subject pronoun. And verb के बाद she क्या बन गया? She जो verb के बाद me आया. Me किसके लिए यूज करते हैं? I का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो मी है ना, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. वर्ब के पहले जो आता है, जो एक्शन करता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. और जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना. ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट रिमेन्स इट, you remains you, we becomes us and they becomes them. ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आराम से आ जाएगा. जो भी वर्ब के पहले होता है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो वर्ब के बाद जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और I play with her. अब इसमें I तो क्या है? सब्जेक्ट है प्रोनाउन, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. क्योंकि ये she जो है अगर वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. और I यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के पहले आया है. फाइन. Now, I hope subject and object pronouns are clear to you. और possessive pronoun क्या होते हैं बेटा? जो possession बताते हैं कि कोई भी चीज किसको belong करती है. Fine. Now students, we'll start with exercise 1. Please take out exercise 1 on page number 57. And the exercise is underline the pronouns and tell whether they are subject, object or possessive pronouns. Okay. Now, कुछ सेंटेंस दिए बेटा और उसमें हमें बताना है. हाँ, हमें क्या करना है? अंडरलाइन दी प्रोनाउंस. पहले हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को, अंडरलाइन करना, एंड देन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है या पोजेसिव प्रोनाउन है. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या? द वन हु डज द एक्शन एंड इट कम्स बिफोर द वर्ब. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या? द वन हु रिसीव्स द एक्शन एंड इट कम्स आफ्टर द वर्ब. And possessive pronoun क्या? The words which show possession, that a particular thing belongs to who. The first one, students, it is already solved, but you need to know why. This chair is mine. Now, this is the sentence to me. Now, इसमें हमको बताना है कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है. This chair is mine. This chair is mine. कौन सा वर्ड बता रहा है कि ये चेयर किसको बिलोंग करती है? Mine. Mine
पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि बता रहा है कि ये चेयर तो मेरी है. दिस चेयर इज माइन. सो ये माइन वर्ड क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड बता रहा है कि चेयर किसकी है. सो जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया है उसको जो लाइन ड्रॉ है आपके सेंटेंस के नीचे, इन दैट वी नीड टू राइट इट एज possessive pronoun. And students, please write the spelling of possessive correctly, keeping in mind कि ई के पहले भी डबल एस आता है और ई के बाद भी डबल एस आता है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक. सो आपको याद रखना है कि द स्पेलिंग ऑफ possessive have got double s before e and double s after e. So mine is possessive pronoun, क्योंकि इस वर्ड से पता चल रहा है कि चेयर किसकी है. तो माइन इज व्हाट? पॉजेसिव प्रोनाउन. फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द सेकंड सेंटेंस. Now, the second sentence is we do not eat too many sweets. Now, the sentence is we do not eat too many sweets. वर्ब कौन सा है बेटा? ईट. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? ईट. और वर्ब के पहले जो एक्शन कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन. सो फाइन. अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? वी डू नॉट ईट मेनी स्वीट्स. वी हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? वी. और वी ईट के पहले आ रहा है, वर्ब के बिफोर आ रहा है. एंड वी जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सो वील बी राइटिंग दिस एज we, because it is coming before the verb, है ना. और जो सब्जेक्ट है वो we है ना. Who does not eat too many sweets? We, है ना. So we is the subject pronoun. We is the subject pronoun. We verb कौन सा है बेटा? eat है. इसमें जो वर्ब है वो ईट है एंड बिफोर द वर्ब जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो हु डज नॉट ईट मेनी स्वीट्स, इसमें सब्जेक्ट है वी और वी वर्ब के पहले आ रहा है. सो वी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दिस इन द लाइन which is given below the sentence. So we do not eat too many sweets. और वी ईट के पहले आ रहा है, ईट वर्ब है. वी एक्शन कर रहा था, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन है ना. द वन हु डज द एक्शन वो क्या है? सब्जेक्ट. और यहाँ पे वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वर्ब के पहले आ रहा है. फाइन. सो प्लीज राइट फास्ट, स्टूडेंट्स. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन, स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू erase this and write the third one. Please children make S of sun capital. This is a misprint in the book. Always remember, sun's S will always be written in capital letters. So all of you please make this as capital. Sun is a star, full stop. It gives us heat and light. Fine. The sun is a star. It gives us heat and light. Now, यहाँ पे
द सन क्या है, सब्जेक्ट है। और सेकेंड सेंटेंस में आप देखो, इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। इट किसके लिए यूज हुआ है, फॉर द सन। सो इट वर्ब क्या है सेकेंड सेंटेंस में, गिव्स। इट हमने किसके लिए यूज किया है, सन के लिए, है ना, क्योंकि हम ही और शी तो खाली ही सारे मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं और शी फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, बट ही मेल्स ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, और शी जो वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए हम शी यूज करते हैं। वेयर एज एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे द सन के लिए क्या यूज हुआ है, इट, और इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी प्रोनाउंस। तो इट और अस ये दो प्रोनाउंस हैं, है ना। नाउ अब हमने प्रोनाउन तो आइडेंटिफाई कर लिया सेंटेंस में, अब हमें पता करना है कि कौन से प्रोनाउंस है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, गिव्स, गिव्स, एंड हु गिव्स अस लाइट एंड हीट, इट। इट किसके लिए हमने यूज किया है, द सन के लिए। तो इट आपका क्या है, कमिंग बिफोर दी वर्ब, है ना, कमिंग बिफोर दी वर्ब, एंड इट क्या है, परफॉर्म्स द एक्शन, इट गिव्स, है ना। तो इट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट प्रोनाउन। बिफोर दी वर्ब, सब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउ गिव्स अस, अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और अस का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या होता है बेटा, वी होता है ना। और ये जो अस आया है ये किसके बाद आया है, वर्ब के बाद आया है। तो वर्ब के बाद जब भी जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और यहाँ पे वी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो अस होता है। तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, बिकॉज अस क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो अस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको ये याद रखना है कि वर्ब के जो पहले आता है, जो एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड वर्ब के बाद में जो आता है, जो रिसीव करता है एक्शन, दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन, सो इट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट फास्ट। गिव्स क्या है, वर्ब है, एंड बिफोर दी वर्ब इट आया, और इट हमने किसके लिए यूज किया है, इट प्रोनाउन, द सन के लिए हमने इट यूज किया है, और यहाँ पे इट बिफोर दी वर्ब आया, सो सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड गिव्स अस प्रोनाउन है, बट इट कम्स आफ्टर दी वर्ब, इट रिसीव्स दी एक्शन, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फाइन, please write fast, students. I hope all of you have written. Now I'm going to erase this and write the fourth one. The fourth one. Don't give this toy to him. It is ours. You know, don't give this toy to him, है ना। In this sentence, verb क्या है, give. Don't give this toy to him. और him कब आ रहा है, after the verb. तो him एक हमारा प्रोनाउन him है, और सेकेंड सेंटेंस में आपका जो प्रोनाउंस है it किसके लिए हमने यूज किया है, this toy के लिए, और the another pronoun is ours. तो इस सेंटेंस में there are three pronouns, him, it, ours. Now जो give है that is the verb, और verb के बाद क्या आ रहा है, him, और him ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है,
So first is him और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वर्ब के बाद. Then it is इसमें वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है. इट किसके लिए यूज किया है, दिस टॉय के लिए. तो इट क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन. इट क्या है बेटा, इट सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज इट कम्स बिफोर दी वर्ब और ये दिस टॉय के लिए यूज किया है. नाउ आर्स, एस लगा है आर में और बता रहा है कि ये टॉय किसको बिलोंग करता है, आर्स. सो पोजेशन बता रहा है, इसलिए आर्स क्या हो गया बेटा, पोजेसिव प्रोनाउन. बिकॉज इट शोज पोजेशन, कि टॉय किसको बिलोंग करता है, आर्स, हम हमारा है. फाइन. सो I hope students, these 4 sentences of exercise 1 of pronouns are clear to you. That's all for today, students. Again, I am telling students, please learn the table given on page number 57. If you learn that table, it will be easier for you to understand and solve the exercises of pronouns correctly. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.